بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر عمران خان کی تقریر کی باز گشت پاکستان سے نکل کر عرب ورلڈ اور مسلم دنیا میں بھی سنائی دینے لگی ہے۔ خطے میں گریٹ گیم سے قبل عمران خان کو راستے کی بڑی رکاوٹ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ریجن میں آخر کیا کھیل ہونے جا رہا ہے؟ جبکہ امپورٹڈ حکومت نے IMF کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، مہنگائی کے مزید ٹیکے لگانے کے لیے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کے کرداروں نے سر جوڑ کر اس بات پر غور شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ الیکشن سے پہلے اسکینڈلز اور ویڈیوز کی تلاش بھی تیز کر دی گئی ہے، لیکن بات بنتی اب تک نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی ترکی کی 2 کمپنیوں نے $230 ملین کا ہرجانے کا دعویٰ انٹرنیشنل کورٹ میں دائر کر دیا ہے۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جسے عمران خان کے دور میں کرپشن کی وجہ سے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان پر الزام تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ مل کر ان کمپنیوں نے کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ اب انہی 2 کمپنیوں کو دوبارہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے لیے شہباز حکومت نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب چین کی جانب سے ایک اور بحری جہاز پاک نیوی کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ بھی اس وقت جب چائنا نے پیسیفک ایشیا میں بڑھتے جنگی خطرات پر پاکستان کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا ہے۔ اس دوران چین کے 29 جنگی جہازوں کے تائیوان میں داخلے کی اطلاع آئی ہے، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ترکی کا اہم دورہ ہوا ہے۔ اسی دوران روسی وزیر خارجہ بھی گزشتہ دنوں ایران پہنچے تھے۔ خطے میں نئی صف بندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ روس نے یورپ کو جانے والی گیس کی سپلائی مزید کم کر دی ہے۔ یورپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس مکمل طور پر یورپ کی گیس بند کرنے جا رہا ہے۔ روس اور چائنا نے نیٹو سے مشترکہ طور پر لڑنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے، جبکہ اسٹونیا کا کہنا تھا کہ روس نے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسٹونیا کی وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو اسٹونیا صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے، کیونکہ روس نے پہلی بار سرمت نیوکلیئر میزائل تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو یورپ اور امریکہ کو ایٹمی ہتھیاروں سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس دوران جو بائیڈن اگلے مہینے سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد خطے کی صورتحال میں اہم تبدیلیاں واقع ہونے جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ چند دنوں سے عمران خان کی جانب سے کی جانے والی تقاریر ایشیا کے ساتھ ساتھ عرب عوام کی توجہ کا بھی مرکز بنتی جا رہی ہے، خاص طور پر جو اس وقت پورے خطے میں گیم چل رہا ہے اور جس کے لیے جو بائیڈن ان قریب مڈل ایسٹ کے دورے پر بھی آ رہا ہے۔ اس گرینڈ پلان پر عمل درآمد کے لیے ایک بساط پورے خطے میں بچھائی جا رہی ہے، اور اس کے راستے میں ان آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یا تو امت کی بات کرتے ہیں یا پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں تیونس سے تعلق رکھنے والے ایک معروف اسکالر جن کا نام دکتور محمد ہاشمی الحمدی ہے، یہ ایک چینل بھی چلاتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کی ہے۔ یہ ٹویٹ انہوں نے کیوں کی، اس کا کیا پس منظر ہے، یہ آپ کو ہم آگے بتائیں گے۔ پہلے یہ ان کا کلپ ملاحظہ کریں جس میں یہ عمران خان کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ I say to Imran Khan from this Arabic channel, this pan-Arab channel, Al-Mustaqillah Television, I'm proud of you. I want to tell you that millions of Muslims around the globe are proud of you, because you are proud of our religion, because you defend our religion, because you defend our prophet. So you deserve that we pray for you day and night. May Allah bless you, protect you, and give you victory. We need leaders like you in Tunisia, in North Africa, in the Arab world. We need leaders like you, committed to Islam, proud of Islam, capable of defending this religion and the Muslim Ummah from the heart and with a clever, bright mind, the way you do it, the way you did it, the way you still do it. Imran Khan, Allah يحفظك ويوفقك ويرعاك. I wish we had a leader like you in Tunisia. I wish, maybe one day. I pray to God that He will give us in Tunisia one like you, proud of his religion, committed to his religion, and committed to the people and to the best interests of the people. آپ نے سنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ پر ہمیں فخر ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان اس وقت آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، نبی کی ناموس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہم دن رات آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو کامیاب کرے۔
हमें ट्यूनिस, अफ्रीका और अरब वर्ल्ड में आपकी तरह का लीडर चाहिए। मुस्लिम उम्मा को आप जैसे लीडरों की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के हक में ये ट्वीट आखिर क्यों की गई। इसका पसे मंज़र ये है कि इस वक्त ट्यूनिस नाम का जो अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ पर एक नया कानून हाल ही में लागू किया गया है, जिसके मुताबिक आज से ट्यूनिस का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं होगा। इस्लाम को सियासी निज़ाम से अलग कर दिया गया है, यानी ट्यूनिस को मुकम्मल सेकुलर मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है। ये ऐलान ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने हाल ही में कर दिया है। इस सूरत हाल के बाद एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। ट्यूनिस में इस्लाम को सरकारी मजहब से खारिज करने पर किसी भी वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं। ये वो चीज़ है जिस पर ट्यूनिस के मारूफ स्कॉलर ने इमरान खान को याद करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि एक जानिब इस्लाम का गद्दार ट्यूनिस का सदर है जिसने इस्लाम को सरकारी मजहब की फहरिस्त से खारिज कर दिया है, दूसरी तरफ इमरान खान जैसे लीडर हैं जो इस्लाम का दिफा कर रहे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। यही वजह है कि अफ्रीका और अरब वर्ल्ड में इमरान खान को अब याद किया जा रहा है और इनकी इस बात को भी दाद दी जा रही है कि इन्होंने अमेरिका, इसराइल और भारत के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। मिडल ईस्ट पर मुसल्लत करदा हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से अब उम्मत मुस्लिमा नए लीडर की तलाश में है और इन्हें इमरान खान में एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। वाज़ेह है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत पटरी से उतरती जा रही है। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इस्लाम की बुनियादों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है ताकि मुस्लिम ममालिक को सेकुलर मुल्क डिक्लेयर करके इन पर मगरिब का घिसा पिटा निज़ाम मुसल्लत किया जाए और यूं इसराइल के साथ ताल्लुकात की राह हमवार करके इसराइल को खित्ते का थानेदार तस्लीम करवाया जाए। और यही खेल एशिया में भी खेला जा रहा है, क्योंकि इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम के चाहने वाले ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो फ़लस्तीन के मामले पर समझौता कर लें। आप अगर तमाम हालात का बगौर जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस ग्रैंड प्लान पर अमल दरामद से पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। मसलन पहले मलेशिया में महातीर मोहम्मद की हुकूमत ख़त्म की गई। इन पर प्रेशर डाला गया कि वो हुकूमत से अपने आप को अलहदा कर लें और महातीर मोहम्मद इसराइल को तस्लीम करने के भी सख्त खिलाफ हैं। इसके बाद उर्दुगान का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक से तुर्की के रवैये में तब्दीली आना शुरू हुई। इसराइली सदर ने तुर्की का दौरा किया और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया गया। अब तुर्की और सऊदीया के ताल्लुकात भी नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज को बखूबी अंजाम दिया गया। अब सूरत हाल ये कि इस वक्त जो बाइडन मिडल ईस्ट का दौरा करने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने अपनी सफ़ीर को सऊदी अरब और इसराइल के दौरे पर रवाना करने का फैसला किया है। मज़कूरा सफ़ीर का नाम देबोरा है। ये बुनियादी तौर पर यहूदी नस्ल हैं। इन्हें जो बाइडन ने एंटी सेमिटिज्म का मुकाबला करने और इन्हें मॉनिटर करने के लिए स्पेशल नुमाइंदा भी मुकर्रर कर रखा है। ये बिल क्लिंटन के दौर में होलोकास्ट मेमोरियल कौंसिल की चेयरपर्सन भी थीं, यानी ये बुनियादी तौर पर यहूदियों के मफादात को दुनिया भर में फ़रोग देती हैं। अब इन्हें जो बाइडन ने अपने दौरे से पहले मिडल ईस्ट रवाना कर दिया है। इनकी कोशिश है कि वो इसराइल और अरब मुल्कों को करीब ला सकें। इस मकसद के लिए ये सऊदी अरब, यूएई और इसराइल का दौरा करेंगी, यानी नॉर्मलाइजेशन डील की अगली किस्त जल्द लॉन्च होने वाली है और इसमें अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कई ममालिक के लीडर्स के साथ भी बातचीत चल रही है। ट्यूनिस के साथ भी मामला तय हो रहे हैं और इस दौरान ट्यूनिस का इस्लाम को सरकारी मजहब की फहरिस्त से खारिज करना ये कई सवालात को जन्म दे रहा है। क्या इसराइल से ताल्लुकात कायम करने से पहले मुस्लिम ममालिक की इस्लामी बुनियादों को हिलाया जा रहा है या ऐसे लोगों को ऊपर लाया जा रहा है जो लिबरलिज्म का प्रचार करते हैं? इस सारी सूरत हाल को अब देखना होगा। जबकि पाकिस्तान में इमरान खान वो लीडर बनकर सामने आए हैं जिन्होंने एक बार फिर खामोशी से साइड पर बैठने से इनकार कर दिया है और बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया है। इसीलिए इमरान खान का मामला अहमियत इख्तियार कर गया है और इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान के खिलाफ स्कैंडल्स या वीडियोस की सूरत में ऐसा मवाद हाथ लग जाए जिससे इमरान की मकबूलियत को धचका लग सके। और इस खेल को अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि शहबाज की मखलूत हुकूमत को तोसी दी जाए। यही वजह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत पूरी तरह IMF और आलमी इदारों के आगे लेट चुकी है। महंगाई के मजीद टीके अवाम को लगने जा रहे हैं। अमरीका ने इम्पोर्टेड हुकूमत को बेसाकी फराहम करने के लिए IMF के जरिए प्रोग्राम बहाल करवाया है और साथ ही नजम सेठी जैसे लोगों को मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसने हाल ही में बयान दिया है कि अगर आपने अपना स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस बहाल करना है और अमेरिका से इमदाद चाहिए तो अमेरिका को अड्डे देने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि इमदाद के बदले अपनी सरजमीन अमेरिका को इस्तेमाल करने दे। ये वो खौफनाक मंसूबे हैं जो इस वक्त ज़ेर गौर हैं। हुकूमत बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
शहबाज शरीफ ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि चाइना और सऊदीया की जानिब से कर्जा देने में काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं था कि यह हुकूमत बाकी रहेगी। अब सूरत हाल यह है कि तुर्की की 2 कंपनियों ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रुजू कर लिया है, जहां $230 मिलियन का हर्जाने का दावा दायर किया गया है। इन कंपनियों के नाम अल-बेराक और उज़्बक है। असल में 2012 में शहबाज शरीफ ने लाहौर को चलाने के लिए कई कंपनियां कायम की थीं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी मेट्रो बस सर्विस शामिल है। शहबाज शरीफ ने इनका कॉन्ट्रैक्ट तुर्की की कंपनियों को दिया था। खास तौर पर अल-बेराक और ओपक ये 2 कंपनियां हैं जो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान के करीब समझी जाती हैं। इसीलिए तैयब उर्दुगान के ताल्लुकात शरीफ बरादरान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि अरबों रुपए के मुआहदे शरीफ बरादरान और तैयब उर्दुगान की कंपनियों के दरमियान होते रहे। लेकिन यह मामला तब खराब हुआ जब इमरान खान ने आते ही करोड़ों की करप्शन का सुराग लगाया और पता चला कि शहबाज शरीफ के दौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका गैर कानूनी तरीके से टर्किश कंपनियों को दिया गया और करोड़ों का नुकसान खजाने को पहुंचाया गया, जिस पर उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने लाहौर में वाक़ इन कंपनियों के दफ्तर पर छापे मारे और असासे जब्त किए और इनके साथ किए गए मुआहदे भी कैंसिल किए गए। इसी तरह इमरान खान के दौर में चीनी कंपनियों के साथ किए गए मुआहदों में भी करप्शन का पता चलाया गया, जो शरीफ बरादरान और चीनी कंपनियों के दरमियान तय हुए थे। जबकि इमरान खान के दौर में टर्किश कंपनियों की जानिब से आलमी अदालत से रुजू भी किया गया था, जिस पर इमरान खान ने तैयब उर्दुगान के जरिए ये मुकदमात भी ख़त्म करवाए, क्योंकि इमरान खान के पास सॉलिड सबूत मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर स्टैंड लिया था, लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर लेट चुकी है। यही वजह है कि टर्किश कंपनियों ने हालिया सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर वर्ल्ड बैंक की अदालत से रुजू कर लिया है, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा इन्हीं कंपनियों के हवाले किए जा सकें और यूं शहबाज हुकूमत का किक बैक एंड कमीशन का धंधा दोबारा चल सके, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत इस मुल्क पर कितनी भारी पड़ने जा रही है। और ये इदारों पर भी बड़ा सवालिया निशान है कि वो इस हवाले से कब तक खामोश रहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।